ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਈ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ KPMG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 300 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਪੁਸ਼ਕਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਮਥੁਰਾ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ। ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਉਹ 20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1991 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਕਾਂਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੁਸ਼ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ, ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਨੋਕਾਮਨਾ, ਸੁਖਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਉਹ KPMG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਯਾਨੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। 60%? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ 1.43 ਅਰਬ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। 2021 ਚ ਇਹ 677 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਚ ਰੋਜ਼ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ, 2023 ਚ ਨਾ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਖੋਜ 585% ਵਧੀ, ਉਜੈਨ ਦੀ 359%, ਬਦਰੀਨਾਥ ਦੀ 343%। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਯੋਧਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੱਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ 20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭੀੜ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰਮ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਕੱਢੀਏ? ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ
ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ हिमायत नहीं कर रहे, सिर्फ श्रोता में जो जानकारी है उसने आधार एक वड्डी तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। आज हम हिंदुस्तान में हिंदू तीर्थ यात्रा के कदीम रिवाज और उसकी जो जदीद शक्ल है उस पर एक तफसीली नजर डाल रहे हैं। हमारे पास इस मौजू पर एक तो इल्मी तहकीक के कुछ हिस्से हैं जो तारीखी पहलुओं को देखते हैं, और दूसरी तरफ एक हालिया रिपोर्ट भी है जो रूहानी सियाहत के मौजूदा रुझानात पर बात करती है। जी बिल्कुल, और हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो इतनी पुरानी रिवायत है ये वक्त के साथ कैसे बदली है, और आजकल खास तौर पे जब टेक्नोलॉजी और सफर इतना आसान हो गया है तो उसकी क्या शक्ल बन रही है। तो अच्छा, शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल बुनियादी तसव्वुर से। तीर्थ यात्रा, कदीम हिंदू मतून जैसे महाभारत है, पुराण है, उनमें तो इसका जिक्र मिलता है ना? जी हाँ बिल्कुल, महाभारत पुराणों में तीर्थ यात्रा की बड़ी अहमियत बताई गई है, और ये सिर्फ सफर नहीं था, ये एक तरह से नेकी कमाने का जरिया था। और जो मुकद्दस मकामात हैं, खास तौर पे जैसे दरिया हैं, उनसे अकीदत का इजहार भी था। ये बात अहम है, पानी का जिक्र आपने किया। जी, ये बहुत दिलचस्प बात है कि कदीम जमाने से ही आप देखें तो ज्यादातर मुकद्दस मुकामात का ताल्लुक पानी से रहा है। दरियाओं के किनारे या जहां दरिया मिलते हैं, संगम, या फिर समुद्र के साहिल। ताकीक ये बताती है कि कदीम किताबों में जिन जगहों का जिक्र है, जैसे गंगा जमुना का इलाका है, कुरुक्षेत्र है, वो आज भी उतनी ही अहम है। अच्छा जी, ये इस रिवायत के तसलसल को जाहिर करता है कि सदियां गुजर गईं, लेकिन अहमियत बरकरार है। तहकीक में एक और बात भी सामने आई है कि तमाम मुकद्दस मुकामात यानी तीर्थों का दर्जा एक जैसा नहीं होता, उनके मुख्तलिफ दर्जात हैं। कुछ तो हैं कौमी सतह के, जिन्हें पैन हिंदू कहा गया है, जहां पूरे मुल्क से लोग आते हैं, और कुछ हैं जो बिल्कुल मकामी सतह के हैं, जहां आसपास के लोग ही ज्यादा आते हैं। अच्छा, यानी जैसे बद्रीनाथ है, वहां तो पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जुबानें बोलने वाले लोग जाते हैं, तो इसका दर्जा यकीनन एक छोटे मुकामी मंदिर से बहुत मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दर्जाबंदी इसी बुनियाद पर है कि ज़ायरीन कहां से आ रहे हैं, कितनी दूर से, और उनका सकाफती पस मंजर कितना वसी है। तो ये जो मुख्तलिफ दर्जे के मकामात थे, क्या उनमें कोई राब्ता, कोई नेटवर्क भी था पुराने जमाने में? जी हाँ, और ये बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम था। उन मकामात के दरमियान राब्ते को कायम रखने में पुजारियों यानी पुरोहितों का किरदार बहुत अहम था। उन पुरोहितों और ज़ायरीन के खानदानों के दरमियान नस्ल दर नस्ल ताल्लुकात कायम थे। ओह अच्छा। जी, आजकल कितना ट्रांसपोर्ट और फोन तो थे नहीं, तो यही ताल्लुकात थे जो एक तरह से मालूमाती नेटवर्क का काम करते थे। ये रिवायत को, मकाम की अहमियत को दूर दूर तक पहुंचाते थे और तसलसल को कायम रखते थे। आज की ऐप बेस्ड प्लानिंग से बहुत मुख्तलिफ था ये। अब हिंदुस्तान की घरेलू सियाहत का तकरीबन 60% बन गई है। 2022 का डेटा है कि 1 अरब 40 करोड़ यानी 1.4 अरब से ज्यादा लोगों ने मुकद्दस मकामात का सफर किया। ये तो बहुत बड़ी तादाद है। जी, ये तादाद वाकई हैरानकुन है, और इस बेमिसाल इजाफे के पीछे जाहिर है जदीद ज़राए आमद और रफ्त हैं, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब देखें ना, प्लान करना, सफर करना, रिहाइश बुक करना, जगहों के बारे में जानना, सब कुछ कितना आसान हो गया है। हाँ, ऑनलाइन सब कुछ दस्तयाब है। बिल्कुल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ट्रैवल एप्स उन्होंने बहुत आसान कर दिया है, और ये रुझान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है। हम देख रहे हैं कि छोटे शहरों में भी, जिन्हें टियर 2, टियर 3 कहते हैं, जो बड़े मेट्रो शहरों के बाद आते हैं, जी वहां भी रूहानी सफर में दिलचस्पी बहुत तेजी से बढ़ी है। मिसाल के तौर पर अयोध्या है, उज्जैन है, बद्रीनाथ है। इन जगहों की ऑनलाइन सर्च यानी तलाश 2023 में पिछले साल से कई गुना ज्यादा थी। अयोध्या की 585%, उज्जैन की 359% और बद्रीनाथ की 343% ज्यादा। ये जबरदस्त इजाफा है। ये आदाद-ओ-शुमार तो वाकई मुतासरकुन है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग जब जाएंगे और टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ेगा, तो क्या इससे कुछ मसाइल भी पैदा हो रहे हैं? क्या ये खतरा है कि सफर की आसानी जो है वो असल मकसद पर हावी हो जाए? ये बहुत अहम सवाल है, और जी हाँ, चैलेंजेस तो हैं। सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज तो ओवर टूरिज्म का है, यानी सयाहों की बहुत ज्यादा तादाद। इससे जो मकामी माहौल है, पानी के वसाइल हैं, सफाई का निजाम है, इन सब पर शदीद दबाव पड़ता है। आलूदगी बढ़ती है, और जो कदीम मंदिर हैं, तारीखी विरासत है, उसे भी नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। फिर उन जगहों की अपनी एक रूहानी फजा होती है, वो भी इतनी भीड़ में मुतासिर होती है। सही। तो इसलिए पायदार सियाहत यानी सस्टेनेबल टूरिज्म के तरीकों को अपनाना, जैसे कूड़ा करकट का बेहतर इंतजाम हो, ट्रैफिक कंट्रोल हो, मकामी सकाफत का ख्याल रखा जाए, यह बहुत जरूरी हो गया है। और जहां तक मकसद की बात है, ये देखना होगा
कि ये इजाफा बुनियादी तौर पर रूहानी तलाश का है या सिर्फ बेहतर सहूलियात की वजह से एक नई किस्म की सियाहत बन रहा है? तो खुलासा ये हुआ कि हिंदुस्तान में तीर्थ यात्रा एक तरफ तो एक बहुत कदीम गहरी जड़ों वाली रिवायत है जिसने सदियों तक अपना तसलसल कायम रखा है, और दूसरी तरफ अब जदीद टेक्नोलॉजी और सफर की आसानियों की वजह से ये ना सिर्फ नई शक्लें ले रही है बल्कि इसकी मकबूलियत भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर गौर करने की जरूरत है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तीर्थ यात्रा को मजीद आसान, मजीद आरामदेह और ज्यादा लोगों तक पहुंचा रही है, तो क्या मुस्तकबिल में तीर्थ यात्रा का वो जो असल मफहूम था, यानी मुश्किलात उठाना, नेकी कमाना, खुद को जानना और मुकद्दस से एक गहरा रूहानी ताल्लुक कायम करना, क्या वो मफहूम अपनी असल रूह खो बैठेगा, चाहे जायरीन की तादाद बढ़ती क्यों ना रहे? ये सोचने की बात है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नगरी है जिसे प्रकाश का शहर कहा जाता है? एक ऐसी जगह जहां मृत्यु भी एक उत्सव है और जहां महादेव स्वयं अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान देते हैं, और जहां एक ज्योतिर्लिंग हजारों सालों से हर विनाश के बाद और भी ज्यादा चमक के साथ और भी ज्यादा शक्ति के साथ पुनः स्थापित हुआ है। लीजिए, आ गई वो जानकारी जिसका आपको इंतजार था। नमस्कार, आज हम चल रहे हैं इतिहास और अध्यात्म की उन गलियों में जहां हर हर महादेव का जयकारा गूंजता है। हम बात कर रहे हैं काशी की, और यहाँ विराजमान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास बाबा विश्वनाथ की। दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा का जीता जागता सबूत है। सोचिए, इसका इतिहास लगभग 3500 साल पुराना है। इस मंदिर को एक बार नहीं, कई बार तोड़ा गया। इसकी शान को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी आस्था को और भी मजबूत कर देगा। जब मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई, तब भी भक्त हमारे आराध्य ज्योतिर्लिंग को बचाने में कामयाब रहे। उसे गुप्त रूप से सुरक्षित रखा गया और फिर 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे वर्तमान स्वरूप में फिर से बनवाया। एक महिला की शक्ति और आस्था ने महादेव के इस धाम को वो भव्यता लौटाई जिसका वो हकदार था। और महादेव का चमत्कार यही नहीं रुकता। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में गंगा नदी दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन जैसे ही वो काशी की सीमा में प्रवेश करती है, वो अपनी दिशा बदल लेती है और उत्तर की ओर बहने लगती है। वो उत्तर वाहिनी हो जाती है सिर्फ बाबा विश्वनाथ के चरणों को छूने के लिए। इसी पवित्र तट पर है दशाश्वमेध घाट, जहाँ सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। और अब वो बात जो काशी को सबसे अलग बनाती है, मोक्ष का रहस्य। यहाँ मणिकर्णिका घाट है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ जिसका भी अंतिम संस्कार होता है, भगवान शिव स्वयं उसके कानों में तारक मंत्र फूंककर उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। कहते हैं यहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि अनंत में विलीन हो जाने का उत्सव है। बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, मतलब ये किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि स्वयं एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ है। काशी का मंदिर विनाश पर आस्था की अमर जीत का प्रतीक है। गंगा का उत्तर दिशा में बहना महादेव के प्रति प्रकृति का अद्भुत समर्पण है। मणिकर्णिका घाट पर स्वयं शिव द्वारा मोक्ष का दिव्य वरदान मिलता है। आपको बाबा विश्वनाथ और काशी से जुड़ी कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? क्या वो महारानी अहिल्याबाई का साहस है या गंगा का दिशा बदलना? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अद्भुत धाम की महिमा को जान सकें। और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वादा है अगला वीडियो दोगुना मजेदार होगा। जल्दी सब्सक्राइब करें।